برج اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب، ان 4 برجوں کے حوالے سے ویکلی ہاروسکوپ میں رضا عسکری آپ کا اپنا ایسٹرولوجر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ہفتہ 6 مئی سے 12 مئی تک ان 4 برجوں کے لیے کیسا رہے گا۔ نئے دیکھنے والے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتے رہیں اور آپ نجوم اسٹوڈیو کی تمام ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ برج اسد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ خاصا ملا جلا سا رہے گا۔ اس حوالے سے ملا جلا سا رہے گا کہ آپ کا ذاتی ستارہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، اور آپ کے 10ویں گھر کا مالک ستارہ بھی آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے۔ آپ کے 9ویں گھر کا مالک ستارہ آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہے۔ یہ تمام ستاروں کی موجودگی آپ کی قسمت، آپ کی عزت، آپ کا کیریئر، مستقبل، آپ کی ساکھ اور آپ کے معاشرتی وقار کے حوالے سے بہت اچھی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ یہاں پر بننے والی جو نظرات آپ کو ابتدائی طور پہ ملیں گی وہ آپ کے 8ویں گھر اور 10ویں گھر کے درمیان بننے والی شمس اور زحل کی جو تسدیس ہے وہ بنیادی طور پر 6، 7 اور 8 تاریخ کو آپ کو میسر آئے گی۔ یہاں کاروباری حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے کیریئر میں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو پارٹنرز کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اس حوالے سے یہ دن بہت اچھے ہوں گے۔ ان تینوں دنوں میں قمر کی دیگر نظرات بھی آپ کے لیے فیور میں ہیں۔ آپ یہاں کوئی بھی ایسے ڈائیلاگس کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے آگے چل کر کے اچھے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ کوئی بھی ایسی رکاوٹ جو کاروبار سے منسلک ہو یا آپ کی صحت سے منسلک ہو، آپ اس کو دور کرنے کے لیے اس ہفتے میں کامیابیاں ہی کامیابیاں دیکھیں گے۔ 6 تاریخ کو قمر کی جو بننے والی نظرات ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا تو 6 تاریخ کو قمر عطارد کے ساتھ آپ کے 9ویں گھر کے اندر کران کرے گا۔ 9ویں گھر کے اندر عطارد کا یہ ہونے والا کران قسمت کے حوالے سے آپ کا بہتر ہوگا، مالی معاملات کے حوالے سے بہتری آئے گی۔ یہاں پر 12ویں اور دوسرے گھر کا مالک جب 9ویں گھر میں موجود ہوگا تو یاد رکھیے گا یہ دونوں ستارے مل کر کے ایسے تمام واجبات جو آپ نے دینے ہیں یا جو یوٹیلیٹی بلز ہیں یا کوئی ایسی اور حکومتی محصولات یا ٹیکسز کا مسئلہ ہے اسے یہاں پر آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے آپ کو تحفظ یہ حاصل ہوگا اس نظر کی وجہ سے۔ اور یہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ قمر اور عطارد جب بھی ملتے ہیں یہ جذباتیت میں اور احساسات میں ایک تغیر لے کے آتے ہیں، ایک تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ یہاں اگر آپ قسمت کا شکوہ کرتے اچھے نہیں لگیں گے، صرف آپ کو کوشش کرنی ہے اور معاملات کو سمیٹنا ہے۔ 7 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 7 تاریخ کو قمر کا اور زہرہ کا کران ہوگا۔ قمر کی اور پلوٹو کی آپس میں تربیع ہوگی۔ آپ کے زائچے کے 10ویں گھر اور 7ویں گھر کے درمیان میں جو یہ تربیع بنے گی یہ آپ کے پارٹنرشپ میں کسی قسم کی مسئلے کو ظاہر کر رہی ہے، اور لیکن یہاں پر چونکہ قمر اور زہرہ کا کران بھی ہے اور دوسری جانب آپ کو شمس اور زحل کی تسدیس بھی مل رہی ہے، تو آپ نے یہاں پر گفتگو کا راستہ اختیار کرنا ہے اور یہ راستہ آپ کے لیے کامیابی لے کے آئے گا۔ چاہے آپ کو شراکتی یا زواجی معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں یا پارٹنرشپ کا کوئی ایشو ہو، وہ تینوں معاملات کے حوالے سے یہاں پر یہ تاریخ آپ کے لیے اچھی رہے گی۔ 8 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو 8 تاریخ کو قمر شمس، مشتری اور یورنس تینوں کے ساتھ کران کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی قمر کی تسدیس زحل کے ساتھ بنے گی اور قمر کی تسدیس نیپچون کے ساتھ بنے گی۔ یہاں پر آپ نے 8 تاریخ کو بزنس کے اوپر پورا فوکس رکھنا ہے۔ ممکنات میں سے ہے کہ
आप जो मुतवक्के आमदनी या मुतवक्के मुनाफा रखते हैं उसमें से आपको 70-80% तक तो कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर आप वहाँ 100% कामयाबियाँ समेटना चाहते हैं तो आपको अपने कैरियर पर और कारोबार पर पूरा फोकस रखना है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी नज़रात हैं ये आपके कैरियर के हवाले से बहुत अच्छी हैं। अपने अफसरान बाला के साथ, अपने ऑफिस कुलीग्स के साथ और दीगर तमाम अफराद के साथ अगर आप किसी किस्म की कोई सिटिंग करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो ये मामलात आपके लिए बहुत अच्छी हैसियत के हामिल हैं। 9 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 9 तारीख का दिन आपके लिए पोटेंशियल और एनर्जेटिक के दिन होगा। यहाँ 9 तारीख को प्लूटो के साथ कमर की तसलीस और मरीख के साथ कमर की तसलीस, ये दोनों अच्छी हैसियत की हामिल हैं 9वें और 11वें घर में, 11वें और 7वें घर में। ये पूरा दिन आपने अपने शख्सियत के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, अपने माशरती मकाम के हवाले से अगर आपने कोई भी कार्रवाई करनी है, कोई भी काम करना है, इन दिन में आप कामयाबी से करें, पूरी ताकत से करें। इंशाअल्लाह आपके मुखालिफिन जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या जो आपकी इज़्ज़त को कम करना चाहते हैं उन पर आपको कामयाबियां मिलने वाली हैं। 10 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 10 तारीख का दिन मिला जुला होगा। कमर अतारत के साथ तस्दीस बनाएगा और ज़हल के साथ तरवी बनाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके मिजाज में कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगी। मिजाज में तब्दीलियां इस हवाले से ला सकती हैं कि कमर और ज़हल की जब तरवी बनती है तो उलझनें आती हैं, लेकिन वहीं पर जब अतारत के साथ बनती है तो वहाँ पर उलझनों की सुलझाव भी आपको मिल रहा होता है। तो ये 10 तारीख का दिन ज़रा मिला जुला सा होगा। आपने इस दिन किसी भी किस्म का कोई मामला आपको दरपेश आए तो सिर्फ़ आपने अपनी अक्ल को और अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए उस मामले का अगर आप हल निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। 11 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 11 तारीख को कमर आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा और दाखिल होने के साथ ही यहाँ पर 2 नज़रात जो बन रही हैं, नेपच्यून के साथ तरबी की और मरीख के साथ तरबी की, ये दोनों नज़रात अच्छी नहीं हैं। आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी और दीगर ऐसे मसले में उलझना नहीं चाहिए। अगर आप उलझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपके दीगर जो मुखालिफिन है या दोस्त नुमा दुश्मन है वो आपको उलझा सकते हैं और आपकी शख्सियत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तीनों नज़रात जो बन रही हैं ये 9वें और 12वें घरों के दरमियान बनेंगी और इसके साथ साथ ये नज़रात जो बनेंगी वो आपके लिए किसी भी हवाले से अच्छे असरात मुरतब नहीं करेंगी। 12 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 12 तारीख की तमाम नज़रात अच्छी हैं। कमर ज़ोहरा के साथ तस्दीस बनाएगा, शम्स के साथ तस्दीस बनाएगा, ज़हल के साथ तसलीस बनाएगा। 12वें घर से ये नज़रात जो बन रही हैं आपके जायचे में 10वें घर के दरमियान और आपके जायचे में मौजूद 8वें घर के दरमियान बनने वाली ये तसलीस आपको नुकसानात को कम करने के हवाले से कोई भी प्लानिंग करेंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपके ऐसे तमाम लोग जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं, उनका चेहरा खुलकर यहाँ पर आपके सामने आ सकता है। एक चीज़ और यहाँ वजाहत से आपको बताता चलूँ कि कमर और ज़ोहरा की ये तस्दीस जो आपके 12वें और 10वें घरों में बन रही है, ये तस्दीस इस हवाले से ज़्यादा बेहतर होगी कि आपको अपने कैरियर या मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी काम करना है, बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से कोई काम करना है, एमिग्रेशन के हवाले से कोई काम करना है, तो यहाँ पर ये तारीख़ें आपके लिए कामयाबी ला रही हैं। बुर्ज सुंबला विर्गो वालों के हवाले से बात करते हैं। विर्गो वालों के लिए 6 मई से 12 मई तक ये हफ़्ता
कैसा रहने वाला है। विर्गो वालों के जायचे में कमर की गर्दिश बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सरतान के दरमियान में रहेगी। बुर्ज हमल जो आपके जायचे का 8वां घर है, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घरों में ये गर्दिश रहने वाली है। आगाज़ हफ्ता के साथ ही आपको शम्स और ज़ोहल की तस्दीस दस्तयाब होगी। ये तस्दीस बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 7वें और आपके जायचे के 9वें घरों के दरमियान बनेगी। यहाँ पर किसी भी किस्म की किस्मत के लिहाज से आपने जो भी एफ़र्ट्स करने हैं आप 6, 7 और 8 तारीख़ों को करें। यहाँ पर पार्टनरशिप के हवाले से, बिज़नेस में नई इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से किए गए काम, बैरून मुल्क सफ़रात या बैरून मुल्क मुलाजमत या एमिग्रेशन के हवाले से या रेजिडेंसी के हवाले से अगर आप कोई काम करते हैं उसमें कामयाबियाँ मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसे तमाम सुंबला अफराद जिनके जायचे में या जिनके घरेलू ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में कोई इख्तलाफात अहले खाना के साथ या ज़वाजी ताल्लुकात में है, उसमें भी यहाँ पर आपको बेहतरी मिलने वाली है। कमर की नज़रात के हवाले से बात करूँगा तो 6 मई को कमर की एक नज़र आपको दस्तयाब होगी और आपके ज़ाती सितारे अतारत के साथ कमर आपके 9वें घर के अंदर, आपके 8वें घर के अंदर किरान करेगा। आपके 10वें घर का मालिक भी है और आपके पहले घर का मालिक सितारा है अतारद, और यहाँ जब कमर किरान करेगा तो याद रखिएगा ये आपके कारोबारी मुखालफीन के हवाले से आपको नुकसान दे सकता है। और ऐसे तमाम अफराद जो कारोबार में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनके साथ आपकी एक मुकाबले की सी कैफियत है, उनकी तरफ से आपको 6 तारीख़ को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 7 तारीख़ के हवाले से बात करूँगा तो 7 तारीख़ को कमर की प्लूटो के साथ तरबी बनेगी, कमर की ज़ोहरा के साथ किरान होगा। कमर का किरान ज़ोहरा के साथ आपके जायचे के 9वें घर में होगा और ये जो तरबी बनेगी प्लूटो के साथ, ये बेसिकली आपके जायचे के 6ठे और 9वें घरों में बनेगी। नौकरी और मुलाजमत पेशा अफराद को थोड़ा बहुत ऑफिस में या कुछ ऐसे मामलात में किसी सरजनिश का या उनको किसी तरफ से कोई बाज़ पुर्स का सामना हो सकता है, ताहम यहाँ पर ये मामलात थोड़े वक्त के लिए होंगे, 4 से 6 घंटे के लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो। ताहम कमर का ज़ोहरा के साथ किरान करना 9वें घर में, ये आपके एमिग्रेशन के मामलात के हवाले से, आपके बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुंसलिक लोगों के कारोबार के हवाले से ये नज़रात बहुत अच्छी अहमियत की हामिल है। अगर आपने कोई हुकूमती वाजिबात अदा करने हैं, यूटिलिटी बिल्स को आप कोई रीशेड्यूल कराना चाहते हैं या कोई और ऐसे वाजिबात हैं जिसको आप चाहते हैं कि आसानी के साथ अदा कर सकें, तो इस दिन में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी ये कोशिशें कामयाब होंगी। 8 तारीख़ को तमाम नज़रात इस हवाले से बहुत अच्छी हैं कि कमर आपके 9वें घर के अंदर शम्स, मुश्तरी, यूरेनस तीनों सितारों से किरान भी करेगा और कमर यहाँ पर गुरूब तो होगा लेकिन कमर आपके 9वें घर के अंदर कज़ीमी होगा। 9वें घर के अंदर होने वाला ये कज़ीमी मून आपकी किस्मत के दरवाज़े आपके लिए खोल सकता है। इस मामले को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और इस तारीख़ में आपने अपने फ्यूचर के हवाले से, अपनी किस्मत को, अपने लक को बेहतर करने के हवाले से आपने काम करने हैं। ये इंशाअल्लाह आपको इनमें कामयाबी मिलेगी। कमर की नज़रात नेपच्यून के साथ और ज़ोहल के साथ तस्दीस की नज़रात होंगी, ये भी बहुत अच्छी नज़रात होंगी क्योंकि नेपच्यून आपके जायचे के 7वें घर में है और कमर आपके जायचे में शर्फ याब होकर के 7वें में तस्दीस की निगाह बनाएगा। ये भी बहुत इस हवाले से बहुत अच्छी नज़र है। बात करेंगे 9 तारीख़ के हवाले से, तो 9 तारीख़ को कमर की प्लूटो के साथ और मरीख़ के साथ नज़रात बन रही हैं। दोनों एनर्जेटिक प्लैनेट है। कमर की प्लूटो के साथ तस्लीस बनेगी आपके
10वें घर और आपके छठे घर के दरमियान, जबकि मरीख के साथ कमर की तस्दीस बनेगी आपके 10वें घर और आपके 8वें घर के दरमियान। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये तारीख़ बहुत अच्छी हैसियत की हामिल है। ऐसे तमाम लोग जो किसी भी जगह, चाहे वो शोरूम है, कारखाना है, इंडस्ट्री है या ऑफिस है, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर वो मुलाजिम हैं तो उनको मुलाजमत के हवाले से ये दिन बहुत अच्छा मिलने वाला है। अपने किसी भी किस्म के मुतालबात को अपने अफसरान या आला सीनियर्स तक पहुंचाने के हवाले से अगर इस दिन आप कोई कामयाबी एफ़र्ट्स करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। 10 तारीख के हवाले से बात करूंगा। 10 तारीख तक मैं आपको ये यहाँ पर बता दूं कि कमर और ज़ोहल की तरबी और कमर और अतारत का तस्दीस बनाना ये मिला जुला दिन होगा, इस हवाले से कि ये तस्दीस आपके जायचे में बुनियादी तौर पर 10वें घर में बनेगी और आपके जायचे के 8वें घर में बनेगी। काम कारोबार में आपको किसी भी किस्म का लॉस हो रहा है, आप उस मामले को यहाँ पर अगर तलाश करने की कोशिश करते हैं कि नुकसान क्यों हो रहा है, तो इस दिन का इंतखाब कीजिए, प्लान कर लीजिए कि आपने अपने काम कारोबार को, अपने अखराजात को रीशेड्यूल करना है और इस दिन में आपने वो जगह या वो कमज़ोरी तलाश करनी है जो आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। ज़ोहल के साथ जो ये तरबी बनेगी, ये तरबी आपके इरादों को तब्दील भी कर सकती है और उसमें ताख़ीर भी ला सकती है। ताहम आपने मज़बूत इरादों के साथ आगे बढ़ना है तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। 11 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 11 तारीख को कमर नेपच्यून की तरबी और कमर और मरीख की तरबी बन रही है। कमर आपके जायचे में 11वें घर में होगा और ये दोनों तरबियात जो बन रही हैं ये आपके 8वें और 11वें घरों के दरमियान बन रही हैं। आपकी पार्टनरशिप के मामलात, आपके नुकसानात आपके दोस्तों की वजह से आपको हो सकते हैं, तो दोस्तों के किसी भी ऐसे मशवरे पर आपने अंधाधुंध अमल नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं और इस दिन में किसी के साथ भी आप यूं ब्लाइंड लेवल पर जा कर के कोई ऐसे काम ना करें, ना ऐसी बात करें, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। 12 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छी हैसियत का हामिल है। कमर आपके 11वें घर में मौजूद रहते हुए ज़ोहरा के साथ, शम्स के साथ, यूरेनस के साथ तस्दीस बनाएगा 9वें घरों में और तस्लीस बनाएगा ज़ोहल के साथ आपके 7वें घर में। ये दिन पार्टनर्स के हवाले से, शरीक हयात के हवाले से, फील्ड वर्क के हवाले से, अगर आप अपने कारोबार को वसअत देने के लिए नई मंडियों की तरफ रुख करते हैं, नए इलाकों की तरफ रुख करते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस दिन में आपके किए गए तमाम काम कामयाबी से हमकनार होंगे और आपको एक वजाहत यहाँ ये भी करता चलूँ कि इस पूरे हफ्ते के अंदर सिवाय आपके जायचे में 10 तारीख के बाकी दिन आपकी फेवर में हैं, अच्छे हैं। कोशिश कीजिएगा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, इसलिए कि मरीख, ज़ोहरा, शम्स ये तीनों की जो नज़रात आपको दस्तयाब हैं, ये नज़रात आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो रही हैं। बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता, ये महीना ख़ासा बेहतर रहा है, इसलिए कि बुर्ज मीज़ान वालों के 7वें घर का हाकिम 7वें में, 8वें घर का हाकिम 8वें घर में मौजूद है। और जबकि ज़ोहल की अगर हम बात करते हैं तो ज़ोहल इस वक्त बुर्ज मीज़ान वालों के 6ठे घर में मौजूद है।
छठे घर में मीज़ान वालों के कुछ सेहत के मसाइल या कुछ वर्क प्लेस के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से कुछ मसाइल ज़रूर दरपेश आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये दीगर मामलात उनके जायचे के हवाले से अच्छे हैं। 6 मई से लेके 12 मई तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 6 मई की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि 6 मई, 7 मई, 8 मई इन 3 तारीख़ों के अंदर शम्स की और ज़ोहल की तस्दीस बन रही है। शम्स और ज़ोहल की ये तस्दीस बुनियादी तौर पर आपके जायचे में छठे घर और 8वें घरों के दरमियान बन रही है। सेहत सलामती के कोई भी मसाइल हैं, जॉब के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें कोई मुखालिफिन आपके ख़िलाफ़ हों या ऑफ़िस मोनोपोली के हवाले से आपको तनकीद का या आपको किसी भी तौर पर निशाना बनाया जा रहा हो, तो उस हवाले से आप यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से मामलात को डील कर सकेंगे और अपनी इस शख्सियत को और अपने काम कारोबार और अपनी ज़ात को इस मामले से बेहतर तरीके से निकाल सकेंगे। सेहत के हवाले से ये तीनों दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर किसी किस्म का कोई सेहत का मसला आपको दरपेश रहा है या हो रहा है या है, तो इन तीनों सूरतों में आप अगर इस वक्त डॉक्टर से रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सेहत सलामती भी मिलेगी और आपके मामलात बेहतर भी होंगे। 6 तारीख को कमर की जो नज़रात बन रही हैं, कमर बुनियादी तौर पर आपके जायचे में 7वें, 8वें, 9वें घरों में मौजूद रहेगा। हफ्ते के आगाज़ के साथ ही कमर आपके 7वें घर में मौजूद होकर मरीख के साथ किरान करेगा और मरीख की ये किरान की नज़र और मरकरी के साथ ये किरान की जो नज़र आपके 7वें घरों में बनेगी, ये आपके मामलात के हवाले से, अज़वाजी मामलात के हवाले से कुछ तेज़ी ला सकती है, कुछ इख्तलाफात ला सकती है, तलखियाँ ला सकती है, या कहना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री जिसको हम ज़ौजा या शरीक हयात कहते हैं, अगर आप ख़ातून हैं तो फिर आप हस्बैंड को रख लीजिए, हस्बैंड आपकी होम मिनिस्ट्री है, और अगर आप मर्द हैं तो फिर आप ख़ातून को होम मिनिस्ट्री रख लीजिए। उनके साथ कुछ मामला दरपेश हो सकते हैं, इसलिए कि कमर जब भी मरीख के साथ किरान करता है तो मिजाज में तेज़ी लेके आता है। मिजाज में तेज़ी, तलखी, लड़ाई, फसाद या नोक झोंक, इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। ताहम यही चीज़ शराकती उमूर के लिहाज से अच्छी नहीं है। आपको अपने शराकती मामलात को बहुत फेयर और बहुत बेहतर तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई इस तरह के मामलात दरपेश नहीं होंगे और कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं होगा। 6 तारीख को ही कमर आपके जायचे के 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और यहाँ पर याद रखिएगा 7 तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो 7 तारीख को कमर आपके जायचे में प्लूटो के साथ तरबी बनाएगा, ज़ोहरा के साथ किरान करेगा। कमर का ज़ोहरा के साथ किरान करना और कमर का 8वें घर में शर्फ़याब होना, कमर जो आपके जायचे के 10वें घर का मालिक सितारा है, जब 8वें घर के अंदर मौजूद होता है तो ये किसी भी किस्म के ऐसे कारोबारी या मुलाजमत के दरमियान में कोई मुखालफिन हो, आपको नौकरी से निकाले जाने का खौफ हो या आपको अपने अफसरान बाला की तरफ से किसी सरजनिश का खौफ हो, तो यहाँ पर ये मामलात, ये नज़रात आपके इस खौफ को निकाल देंगी और आप बाकायदा अपने अफसरान बाला से या अपने कारोबारी मामलात रखने वालों के हवाले से अगर कोई गुफ्तगू करते हैं, अगर कोई आप बातचीत करते हैं, तो इन मसाइल को आप यहाँ पर बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। 8 तारीख के हवाले से 8 तारीख को कमर ज़ोहल के साथ तस्दीस बनाएगा। ज़ोहल जो बुनियादी तौर पर आपके छठे घर में है, ये भी आपके ऑफ़िस और आपके वर्क प्लेसमेंट में जारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से बहुत अच्छी नज़रात हैं। सेहत के हवाले से बहुत अच्छी नज़रात हैं। कमर का 8वें घर के अंदर शम्स के साथ, यूरेनस के साथ, मुश्तरी के साथ किरान करना, कुछ घंटों के फासले से ये तीनों किरान होंगे और यहाँ पर कमर गुरूब हो जाएगा। कमर का गुरूब होना
عارضی طور پر آپ کے لیے 1-2 گھنٹے کی اس دن میں کوئی ایسی مشکلات لا سکتا ہے، تاہم کوئی بہت بڑی مشکلات نہیں آئیں گی۔ اور اسی تاریخ کو 8 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے میں نیپچون کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بھی بنائے گا، اور نیپچون کے ساتھ بننے والی یہ تسدیس کی نگاہ اچھی حیثیت کی حامل ہوگی۔ نیپچون جو آپ کے ذائچے میں برج حوت میں موجود ہے، مینز آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہے، یہ تسدیس آپ کے معاملات کو بہتر کرے گی۔ یورنس، شمس اور مشتری کے ساتھ یہ قران آپ کے 8ویں گھر میں ہوں گے۔ اسی دن نیا قمر بھی طلوع ہوگا، نیو مون چارٹ بھی بنے گا، اور یہ نیو مون آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں بننے جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ پورا آنے والا جو قمری مہینہ ہے آپ کو پارٹنرشپ کے حوالے سے، ازدواجی تعلقات، شراکتی تعلقات کے حوالے سے، معاشرتی اور وراثتی معاملات کے حوالے سے یہ پورا مہینہ یہاں پر قمر آپ کو مرکز بنا کے رکھے گا، اور ان معاملات کو آپ یہاں پر احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ 9 تاریخ کو 2 نظرات بنیں گی۔ 9 تاریخ کو قمر اور پلوٹو کی نظرات بنیں گی۔ تثلیث کی، قمر اور مریخ کی تسدیس کی نظر بنے گی۔ قمر یہاں 9ویں گھر میں رہتے، یہاں پر آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر میں رہتے ہوئے پلوٹو کے ساتھ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں تثلیث بنائے گا۔ 9ویں اور 5ویں گھروں میں بننے والی یہ تثلیث آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے، شیئر مارکیٹ میں کام کرنے والے، پیار محبت کے معاملات میں الجھے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی سجیشن یا کسی یونیورسٹی کا چناؤ آپ ان دنوں میں کرتے ہیں اور ان دنوں میں ہی ان کا ایڈمیشن بھی کرواتے ہیں، تو یہ تاریخ اس لحاظ سے بہت اچھی حیثیت کی حامل ہے، اس لیے کہ 6، 7، 8 اور 9 تاریخوں کی اگر میں بات کروں گا تو یہاں پر شمس اور زحل کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو شمس اور زحل کی تسدیس بھی بن رہی ہے آپ کے ذائچے کے 6 اور 8ویں گھروں میں، تو یہ کسی بھی قسم کی رکاوٹوں سے آپ کو محفوظ کر دے گی، سیکیور کر دے گی۔ آپ نے ان دنوں میں بلا خوف و خطر اپنی زندگی کے معاملات کو سر انجام دینا ہے اور کامیابیاں سمیٹ لینی ہے۔ 10 تاریخ کو بنیادی طور پر 2 نظرات بنیں گی۔ قمر کی تربیت زحل کے ساتھ بنے گی، زحل جو آپ کے 6 گھر میں ہے اور قمر آپ کے 9ویں گھر میں ہے، تو آپ کی ترقی کے حوالے سے یا دیگر ایسے معاملات کے حوالے سے جس میں آپ کو کوئی امیدیں اپنی جاب سے، اپنے کام سے ہوں، ان میں یہاں پر آپ کو ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے یا کسی قسم کے معاملات کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کو ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے، اور ڈائیلاگس کے لیے یہاں پر عطارد اور قمر کی تسدیس آپ کو 10 تاریخ کو میسر آئے گی، اور اس تاریخ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ 11 تاریخ کی بات کروں گا تو 11 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے میں 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 10واں گھر جو آپ کے کیریئر کا گھر ہے، تو یہ دونوں دن 11 تاریخ 12 تاریخ اس حوالے سے بہت اچھی ہیں کہ آپ اپنے کیریئر اور مستقبل پر فوکس کر سکیں گے، اپنے کاروبار پر فوکس کر سکیں گے، اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اپنے آفس کے معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ اگر کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوششیں آپ کے لیے کامیابی کا باعث بننے والی ہیں۔ 11 تاریخ کو قمر کی تربیت مریخ کے ساتھ آپ کے کاروباری شریکوں کو، ایسے تمام افراد جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ ہے اور پارٹنرشپ میں کسی قسم کی کوئی انبن، تلخی یا کوئی ایسے معاملات درپیش ہو سکتے ہیں، انہیں آپ صبر و تحمل سے ڈیل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر آپ کا ذاتی ستارہ آپ کے ذائچے میں موجود 8ویں گھر میں اچھی پوزیشن میں ہے، تو آپ ان معاملات میں کسی قسم کے شکوک و شبہات اگر آتے بھی ہیں تو آپ احسن طریقے سے اس کو ڈیل کر لیں گے، کوئی آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ 12 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے بنیادی طور پر
زہرہ کے ساتھ تسدیس بنائے گا، شمس کے ساتھ تسدیس بنائے گا، یورنس کے ساتھ تسدیس بنائے گا اور زحل کے ساتھ تسلیس بنائے گا۔ یہاں پر آپ کے کام، کاروبار، کیریئر، مستقبل، فیوچر، افسران بالا، آپ کے والد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ یہ تمام اچھی نظرات موجود ہیں۔ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاملات جو ہیں یہاں بہترین طریقے سے حل ہونے والے ہیں، اور یہ معاملات آپ کے لیے جو کچھ عرصے سے وراثتی معاملات بھی یا کچھ ایسے معاملات درج سر بنے ہوئے تھے، ان معاملات کو آپ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں جناب برج عقرب کے حوالے سے۔ برج عقرب والوں کا ذاتی ستارہ اس وقت ان کے چھٹے گھر برج حمل میں موجود ہے، اور برج حمل میں رہنے کے ساتھ ان کے 7ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ان کے ذائچے میں برج حمل میں موجود ہے۔ ان کے 10ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ان کے 7ویں گھر میں برج ثور میں موجود ہے، زہرہ بھی برج ثور میں موجود ہے۔ یہاں پر آغاز ہفتہ کے ساتھ ہی آپ کو شمس اور زحل کی تسدیس ملے گی 6، 7 اور 8 تاریخ کو۔ 6، 7 اور 8 تاریخ کو شمس اور زحل کی یہ تسدیس آپ کے ذائچے کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر اور اس کے ساتھ ساتھ 5ویں گھر کے درمیان میں بنے گی۔ 5واں گھر برج حوت ہے، اور 5ویں اور 7ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تسدیس ایسے تمام عقرب افراد کی منگنی، شادی یا جو ان کے پیار محبت کے معاملات ہیں ان میں کسی قسم کے اختلافات، رکاوٹیں یا کسی طور پر کوئی مشکلات ہیں تو اس کو حل کرنے کے حوالے سے یہ تاریخیں آپ کے لیے بہت اچھے اثرات مرتب کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں قمر بھی یہاں 7ویں گھر میں آ جائے گا، اور یہاں پر 7ویں گھر میں 6 اور 7 تاریخ کو رہتے ہوئے بہت اچھے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ 6 تاریخ کو قمر کی عطارد کے ساتھ تسدیس، اور یہ تسدیس بھی آپ کے ذائچے میں اگر میں بات کروں گا تو 6 تاریخ کو قمر کا مرکری کے ساتھ عطارد کے ساتھ کران آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہوگا، اور اسی تاریخ کو قمر آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 7ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی قمر یہاں پر زہرہ کے ساتھ کران بھی کرے گا اگلی تاریخ میں، اور یہاں پر قمر کا یہ داخلہ آپ کو کسی بھی حوالے سے منفی اثرات دینے والا نہیں ہے۔ آپ یہاں گفتگو سے، ٹاک سے، ٹیبل ٹاک سے اپنے تمام معاملات کو، اپنی تمام کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں اور کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کے معاملات درپیش نہیں ہوں گے۔ 7 تاریخ کو قمر اور پلوٹو کی تربیع بنے گی۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں ہے، قمر جو آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہے۔ یہاں پر یہ بننے والی تربیع اہل خانہ میں کسی قسم کے معاملات لا سکتی ہے، خصوصاً شادی شدہ افراد کو یہاں پر زوجہ اور ساس کے اختلافات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل خانہ میں کسی کے صحت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ 8 تاریخ کی اگر بات کرتا ہوں تو 8 تاریخ کو قمر یہاں پر زحل کے ساتھ تسدیس بنائے گا، اور 8 تاریخ کو نیپچون کے ساتھ تسدیس بنائے گا، جبکہ قمر کا کران شمس کے ساتھ بھی ہوگا، قمر کا کران یورنس اور مشتری کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس حوالے سے 8 تاریخ کا دن آپ کے لیے خاصی اچھی اہمیت کا حامل دن ہے۔ ان دن میں آپ پارٹنرشپ کے حوالے سے، سماجی، ازدواجی، شراکتی، معاشرتی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی ایفرٹس کریں گے تو یہاں پر عقرب والوں کو کامیابیاں ملنے والی ہیں، اور بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے آپ یہاں پر کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر قمر آپ کے 9ویں گھر بیت القسمت کا مالک ہے اور 7ویں گھر میں آ رہا ہے، 7ویں گھر میں موجود ہے اور شرف کی حالت میں ہوگا، گو کہ یہ قمر قصر النور میں ہوگا اور یہاں پر قمر روشن نہیں ہوگا، اماوس کی راتوں میں ہوگا، لیکن بہرحال آپ کو اپنی شریک حیات کی صحت پر خیال رکھنا ہوگا،
नींद और आसाबी दबाव आपके शरीक हयात को इस तारीख में दरपेश हो सकता है। 9 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 9 तारीख को प्लूटो के साथ कमर की तसलीस और मरीख के साथ कमर की तसदीस, ये दोनों एनर्जेटिक नज़रात हैं। कमर आपके 7वें घर में है, प्लूटो आपके जायचे में बुर्ज दलू में मौजूद है। और बात करूंगा अगर मरीख की तो मरीख आपके जायचे के बुर्ज हमल में मौजूद है। ये नज़र आपके 8वें और 6ठे घर और 8वें और 4थे घर में बनेगी। सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, इख्तलाफात दूर होंगे कमर और प्लूटो की तसलीस के हवाले से। जबकि कमर और मरीख की जो ये तसलीस है, ये आपके वर्क प्लेस पर किसी भी किस्म की कोई मामलात में ख़राबियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से ये तसलीस यहाँ पर बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होगी। 10 तारीख को भी 2 नज़रात बनेंगी। कमर ज़ोहल के साथ तरबी की नज़र बनाएगा। कमर का 7वें घर में और 8वें घर और 5वें घर के अंदर तरबी की नज़र बनाना आपके अज़वाजी कोशिशें या आपकी शादी की कोशिशों में आर्जी तौर पर इल्तवा आ सकता है। और इसी दिन कमर की जो अतारत के साथ तसदीस बनेगी, ये आपके जॉब, मुलाजमत और दीगर माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से ये तारीख़ खासी अच्छी अहमियत की हामिल होगी। 11 तारीख को कमर आपके जायचे के 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और यहाँ दाखिल होने से पहले नेपच्यून के साथ तरबी बनाएगा और मरीख के साथ भी तरबी बनाएगा दाखिल होने के बाद। यहाँ पर नेपच्यून के साथ जो तरबी बन रही है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 8वें घर और 5वें घर में बन रही है, जबकि मरीख के साथ जो तरबी बन रही है वो आपके जायचे के 9वें घर और 4थे घर में बन रही है। तो यहाँ पर ये इस दिन आपको अपने प्यार मोहब्बत के मामलात, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में अंधाधुंध ख़रीदारी से गुरेज करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाने हैं। किसी तरह का इस तरह अंधाधुंध कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आपके आने वाले दिनों में आपके लिए लॉस का बुनियाद बने, आपके नुकसान की बुनियाद बने। यहाँ पर 11 तारीख को कमर का दाखिला जो 9वें घर में हो रहा है, 9वें घर में कमर दाखिल हो कर के आपके 7वें घर में मौजूद ज़ोहरा के साथ तसदीस बनाएगा, आपके 7वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ तसदीस बनाएगा, आपके 5वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ तसलीस बनाएगा, आपके 7वें घर में मौजूद शम्स के साथ तसदीस बनाएगा। 5, 7 और 9, 5वां, 7वां और 9वां घर, ये तीनों इस हफ्ते के आखिरी दिन 12 तारीख को आपका मरकज़ निगाह रहेंगे। इस तारीख को अगर कहीं आपकी निस्बत भी तय हो सकती है तो बहुत अच्छा दिन है। इस तारीख को आप अपने बच्चों के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से कोई काम करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा दिन है। इस हवाले से अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनामी बॉन्ड्स लेते हैं या इनामी स्कीमों में कोई हिस्सा लेते हैं, या इस दिन कोई आपकी बीसी या कमेटी खुलने वाली है, तो याद रखिएगा आपको बहुत अच्छे माली फ़वाइद मिलेंगे। शराकत दारी के हवाले से अगर आप इन दिनों में कोई काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। ओवरऑल ये पूरा हफ्ता बुर्ज अकरब वालों के लिए, मीज़ान वालों के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो को आप देख चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वीडियो में नजूम स्टूडियो के प्लेटफार्म पर। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।